Welcome all of you for this session of Journey of Self-Discovery, which has now got converted to an online session. In this era, we have this fortune of having this kind of system. Although these scientists have created some viruses also, but some of the things are very great, like this Zoom, which we use very frequently. Somebody is sitting somewhere and Naman is sitting somewhere where, and Vijaydeep is sitting somewhere, Kritin is sitting somewhere, Vasav is sitting somewhere. Everybody is sitting at different place, and then we have this fortune of associating with each other. Only very few things are not there, which is like our cakes and snacks may not be there, which we cannot transfer from here. If it would have been, I would have really ordered. I think that would be a good option. We would just put an order, and on Monday evening you get that packet. So this is also a solution which we can give. Thank you so much for taking out your time, and this is a evening, and every Monday we are discussing this journey of self-discovery. Today we are going to do the second part, the second session, which was remaining. The part one of this session we could complete at the venue CR6 in JP University itself. And now today we will be discussing the second session. But before second session, we would like you to see some videos. So this is one video, which is an 8 minutes video. If you can watch this with care. Just tell me if you are getting the audio or not. I'm just switching it on. कृतिन, विजयदीप, नमन, कोई भी आप में से कोई सर हिला के बताना कि ओके है ना? ठीक है ना? वीडियो ऑडियो अगर आ रहे हैं Common sense says yes, and a few say no. So this is a video which shows there are many people who say that does God exist or not. So this is a video just to that same question has been shown in a video. So you can just go through this. Does God exist? This is the video's title. Since the year of existence of mankind, the believers have been challenged about the existence of God. The main argument of the non-believers has always been that there are no evidences to prove that God does exist. However, here we provide certain rational thoughts and facts to give a much different perspective of the subject. When we come across a painting such as Mona Lisa, definitely we inquire about the painter, Leonardo da Vinci. Many such man-made wonders do exist. To name a few: the Taj Mahal, India; the Palm Jumeirah, Dubai; Dreamliner, Boeing 787, International Space Station Hotel, Oasis of the Seas, Burj Khalifa, cars, robots, phones. The list is unending. There is
Definitely the intelligence of some intelligent being or beings involved behind such creations. So, who has created what we have not created? Such as the human eye. The human eye is among the most complex organs in our body. It perceives 7 to 10 million colors through a synaptic flash, that is, 1/10 of a second. Who is the designer and creator of the human eye? And also of many other remarkably wonderful things, such as the list is unending. A complex design points to a deliberate designer. Modern scientific research shows that the amount of fine-tuning of the universe is considerably surprising. The particularity of the details quite vividly points to an intelligent designer. Let's see some of the examples. First, speed of Earth's rotation. If the Earth rotates too quickly, we will have too many storms like tornadoes and hurricanes. And if it rotates too slowly, it will be too cold at night and too hot during the day. Did the planet Earth learn on itself about its perfect speed? Or is it being monitored just like a satellite is monitored by hundreds of scientists together? Second, size of Earth. The Earth's size and its corresponding gravity holds a thin layer of mostly nitrogen and oxygen gases, only extending about 50 miles above the Earth's surface. If Earth was smaller, an atmosphere would be impossible. If Earth were larger, its atmosphere would contain free hydrogen, which would make life impossible. Who gave it the perfect size? Third, location of Earth. Although it revolves around at a tremendous speed of nearly 67,000 miles per hour, it manages to maintain its position at the exact distance. Furthermore, it's found that if the Earth were any further away from the Sun, we would all freeze. Any closer and we would burn. Who thus pinned the planet Earth at the exact fitting distance from the Sun? And that's just about one planet Earth in a huge universe. Similar observations have been recorded by the scientists for other such massive bodies. Who finally designed the entire planetary systems? Some of the scientists may say it just happened by chance. Does that sound like science then? Any sane man endowed with reason would question about the designer when he sees a good design. So in the similar spirits, we should inquire, where does the fine-tuned design of the universe come from? Order in the universe implies a smart organizer. When we reflect upon the nature of our world, we see order everywhere. The more we discover about the universe, the more we find that it is governed by rational laws. With our apt intelligence, we are trying to come up with the concept of symbiotic factory. Symbiotic factory refers to a system in which the waste of one factory, say A, is completely utilized by another factory, say B, as its resource or raw material.
and the waste of factory B is completely utilized by factory A as its resource. Such a concept sounds ecologically brilliant and economically smart as a whip. However, it inevitably remains theoretical. But to the much of our surprise, such symbiotic factories do exist in the universe. One such arrangement is the cycle of respiration and photosynthesis. At every moment, we breathe in oxygen and give out carbon dioxide, which is taken in by plants, which continue to give out oxygen. Oxygen is life-sustaining, and carbon dioxide is life-destroying, if present in excessive quantity. There is a magnificent balanced system in nature which exactly takes in the waste product of respiration, carbon dioxide, and gives out the raw material for respiration, oxygen, through the process of photosynthesis. Can the best of the scientists make such a symbiotic factory setup, where waste product of one factory completely acts as the raw material for the other and vice versa? Now, since the universe has order and is governed by the laws of science, we should question how this order came about. Shouldn't there be an organizer behind all these complex arrangements in the nature? Speaking about the laws, uniform laws of nature connotes an intelligent lawmaker. Much of life may seem uncertain, but look at what we can count on day after day. Gravity remains constant. A hot cup of coffee left on a counter will get cold, and the earth rotates the same in 24 hours. How is that we can identify laws of nature that never change? Why is the universe so orderly, so reliable? The great scientists believed there are no logical necessities for a universe that obeys rules, let alone one that abides by the rules of mathematics. It is easy for them to imagine a universe in which conditions unpredictably change instant to instant. Richard Feynman, a Nobel Prize winner for quantum electrodynamics, said, "Why nature is mathematical is a mystery. The fact that there are rules at all is a kind of miracle." In our day-to-day life, we don't have any experience of a law which has not been made by someone. The forming of every single law and its enforcement is always governed by an intelligent person. So it's truly rational to infer that the universal laws and their strict enforcement imply the existence of a lawmaker. A creation undisputedly implies a creator. Now, if there is a designer, there is an organizer, there is a lawmaker, then definitely when we see the entire universe, we can infer that there is a creator. When even a paper rose flower needs a creator, then how can the real rose flower be created by no one? Many even say that the nature is working automatically, thus denying the need of a creator. They argue that seeing any divinity or God controlling nature is just a sentimental longing coming from an unscientific mentality. So, does nature work automatically? The word automatically used in this context is somewhat misleading because automatically doesn't indicate the absence of a controller, but rather the absence of knowledge of the controller. When we say that a machine works automatically, what it means is that the machine doesn't require continuous interaction with the operator, but still there is an operator who activates the machine and monitors its working. For example, a child may be astounded by looking at a toy moving automatically, but a wise person will never be misled into the same conclusion as the inexperienced child. Similarly, the magnificent phenomena in nature are not occurring by themselves, as someone may imagine, like the naive child. All natural phenomena are working under the expert, though remote and therefore invisible programming of God, as has been the conclusion
throughout history of many wise people, both religious and scientific. Thus, it is that the famous physicist Lord Kelvin asserted, "If you think deeply enough, you will be forced by science to believe in God." Max Planck, the originator of quantum theory, remarked, "For religion, God is at the beginning. For science, God is at the end." In Vedanta Sutra, the concise summary of the Vedic literatures, we find similar conclusions. Janmadhyasya yataha. God, or absolute truth, Brahman, is the source of everything. Likewise, Lord Krishna speaks in Bhagavad Gita that He, the Supreme Absolute Truth, is the source of all worlds and everything emanates from Him. Aham sarvasya prabhavo matha sarvam pravartate. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. So, अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा. I'll ask some questions. Those who have watched the video properly and those who have seen it carefully, they can answer. So the first question is, what are the logics which the video shows, wherein it says that there is 100% system, a symbiotic system, wherein the waste of one is the utilization of the resource of other, and the resource of one is the waste of another. Anyone who can answer? Carbon dioxide, oxygen. Carbon dioxide and oxygen, right? So, and there are three more logics which were given for the existence of God. Laws imply, if you can raise hand, that would be better. अगर आप यहाँ पर हाथ उठा सकते हैं, इसमें एक hand raise करने का option आता है. In more, if you go in your mobile device, there will be an option of raising hand. So if you can raise hands, or else you can just unmute and say also. Vasu. Vasu? Yes, sir. So laws imply, इसमें बोला गया ना, laws हैं, इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में laws imply तो मतलब है लागू किए जाते हैं. हाँ, तो laws imply a law maker, ऐसा इसमें बताया गया है ना, लॉजिक दिया गया. जैसे creation implies a creator. Similarly, design implies a designer. Designer. So this video was showing that the different logics which we use to explain why God exists. Laws implies a lawmaker, and creation implies a creator. Design in this world implies a designer. So now one thing which anyone will ask is, okay, that is okay that design implies a designer, and then why I can't see him? I want to see him. Show me God. This is one thing which everyone asks. If at all he exists,
why can't you show me? So for this also there are different explanations. Let us see what the devotees have to say. तो मैं इस स्क्रीन को आपको शेयर करता हूँ. You can just. Sir, Yes, Vasu, you wanted to say something? sir, जैसे क्वेश्चन तो आता है कि हमें गॉड दिखाओ, that show us the God and all. तो सर एक बात पूछनी थी, गॉड ने हमें उन्हीं के जैसे बनाया, like exactly the same, We will just with exactly the अभी जैसे हम ये देखेंगे ना, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो हमको सब कुछ पता चल जाएगा. ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा. ये उस दिन मैंने सबसे पहले जो लॉजिक्स आपको बताए थे वो मैं फिर से आपको बताता हूँ, है ना. नहीं तो हमने ये जब ये चर्चा किया था कि हैप्पीनेस वाले सेशन में कि बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स वी शुड इंक्वायर वेदर गॉड एग्जिस्ट, what is, from where I can get the information about him. So the first logic which we gave was that everyone is having some desire for something great or some God. हर एक अंदर एक इच्छा होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर. तो वो एक, जैसे कि पानी प्यास होने पर पानी है, उसी तरह से हर एक व्यक्ति के अंदर ये एक इच्छा है. तो हमने ये कहानी सुनी थी उस बार कि जो मैंने आपको ये कहानी बताई थी, द स्टोरी ऑफ एस्ट्रोनॉट, है ना. हाँ जी सर. आप में से किसी को याद है वो स्टोरी? किसी को याद है? हाँ जी सर कि वो जो एस्ट्रोनॉट था वो भगवान में विश्वास नहीं करता था. वो गया ऊपर ट्रैवल करने लगे तो बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई उसके रॉकेट की. तो रॉकेट वाज अबाउट टू लाइक बूम आउट, तो उसमें जो वर्ड्स बोल रहे थे उस टाइम भी तो यही था कि वो गॉड सेव मी. तो इसका मतलब ये है कि वो ओ गॉड प्लीज सेव मी का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति के अंदर देयर इज एन इनहेरेंट नेचर दैट गॉड मस्ट बी एग्जिस्टिंग. ही इज हैविंग दिस फीलिंग. तो ये हमने देखा था. अभी आगे हम इसमें और लॉजिक्स जो हैं इसको देखेंगे. ये आपके लिए इस तरह से यूजफुल रहेगा कि आपको कभी भी जब इन लॉजिक्स को आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सत्य है. किसी को भी बताने में भी आपको बहुत अच्छा रहेगा. अब दूसरा ये लॉजिक सब लोग बोलते हैं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकता. अब सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि क्या जो कुछ भी मैं देखता हूं क्या उसी पे मैं विश्वास करता हूं? जो कुछ भी मैं देखता हूं क्या उसी पे मैं विश्वास करता हूं? अब जैसे देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें चीजें बहुत छोटी दिखती हैं, है ना. नहीं, और ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें थोड़ी बड़ी दिखती हैं. इस तरह से अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग लॉजिक देते हैं कि मुझे तो दिखता नहीं तो वैसे हम हवा का एग्जांपल भी ले सकते हैं. हम हवा देख नहीं सकते. हाँ, हवा का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. ठीक है, ठीक है. यहाँ पर फिर नास्तिक लोग दूसरी ये देते हैं, दलील देते हैं कि सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वत्र व्याप्त, सर्वदर्शी अगर कोई ईश्वर है तो इस संसार में इतना कष्ट क्यों है? तो इन तथ्यों को अलग अलग लॉजिक से, जो ये 4 लॉजिक्स हैं ये वीडियो में दिखाए गए थे. एक तो ये था नियामक या परम नियंत्रक, और फिर अनुक्रम, प्रबंध और अभिकल्प. ये सब मतलब कंट्रोल इम्प्लाइज ए कंट्रोलर. ये सब लॉजिक्स हमने देखे थे. भोजन की आवश्यकता है तो भोजन है,
पानी की आवश्यकता है तो पानी है। नियम का होना नियम बनाने वाले की ओर संकेत करता है। अगर कोई कॉलेज में मान लो आपके रजिस्ट्रार सर या फिर कोई नहीं है तो फिर कोई नियम नहीं रह जाएगा। उसी तरह से इस दुनिया में भी हम देखेंगे कि ये नियम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने अभी वीडियो में देख लिया, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि लाइट जब इधर से आती है तो हर बार प्रिज्म ऐसे ही इसको रिफ्रैक्ट करता है। दैट मीन्स surely there is a pattern and rules in this world. If they exist, if for a small satellite there is so much of control required, will it not be required for this whole world? That somebody must be controlling it. Similarly, there is this example of DNA. You have seen DNA, how nicely things are arranged. Protein molecules, then any cell, if you see mitochondria is the energy cell, energy unit of the cell. एक जो छोटी सी सेल होती है एक बॉडी में, उसके अंदर भी इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई है जो ये नियमों को बना रहा है, इन नियमों को चेक कर रहा है। और फिर ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये मकड़ी है। जैसे ये मकड़ी को देखो, ये किस प्रकार से, आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं ना। ये किस तरह से देखो, ये मकड़ी ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि यही सिविल इंजीनियर है, यही खुद ही ठेकेदार भी है अपने घर को बनाने की, और यही डिजाइन बनाती है, और रिसोर्स मटेरियल भी इसको कहीं और से नहीं लाना पड़ता, ये अपने मुंह से ही निकालती है, और मकड़ी इतना बड़ा सिस्टम बना देती है। इसी तरह से कितना अच्छा इस संसार में देखो फूल हैं। ये बरगद का जो पेड़ है, ये छोटे से बीज में, बरगद में इतना बड़ा पेड़ ये होता है, और इसके बीज में फिर से नए बीज आते हैं, फिर बीज से नए पेड़ आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई व्यक्ति है जो इसके बैकग्राउंड में है, जो सारे इस चीज को देख रहा है और इस सिस्टम को बनाया हुआ है। इसी प्रकार से मधुमक्खी भी है। तो ये सब, फिर इस वीडियो में भी ये लॉजिक था कि आप आंखों को अगर आप देखेंगे तो ये आंखों में 4 करोड़ नसें होती हैं, और कम से कम 1 लाख बार एक दिन में ये घूमती हैं। इसके अंदर जो मसल्स हैं वो, और रेटिना के अंदर, हमारी जो रेटिना है उसके अंदर you see this is 137 or 1 crore 370 lakh photosensitive cells are there, है ना? 13 crore 70 lakhs photosensitive cells are there. हमारे ब्रेन के अंदर अगर आप देखो तो कितना बड़ा साइंस है। 17,000 thoughts can be multitasked in the brain. 17,000. That means in a browser, if you open 17,000 tabs, it can process those 17,000 tabs. This is such a laptop. This brain is such a laptop. So this human brain can save the information of all the libraries of this earth. So these are different researches which show that हमारा जो ये, अब देखो जैसे ये क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ के बता सकता है? कोई पढ़ के बता सकता है? ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ के कोई बता सकता है?
आप कोई भी इसको बोल सकते हैं, अनम्यूट करके आप इसको बोल सकते हैं। हाँ कृतिन बोलो। कृतिन आप कुछ बोल रहे थे? सर लोदों के हाँ, कृष्णा बन। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा इसको समझ, अगर अगर इसके जो वर्ड्स हैं इसको थोड़ा जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। LODON लिखा हुआ तो इसका मतलब लंदन होगा, ये KISHN लिखा हुआ तो कृष्णा होगा, ये BANALORE लिखा हुआ तो बैंगलोर होगा ये। तो हमारे ब्रेन के अंदर स्वरूप को पहचानने की, संशोधन करने की क्षमता है। ये कोई मशीन नहीं कर सकती ऐसा। आप अगर मशीन को बोलेंगे कि LODON तो वो इसको रीड कर लेगा, LODON। मशीन विल नॉट रीड इट। तो इन सब चीजों से ये प्रूव होता है। आप देखिए जिराफ है, इसकी कितना, इसका शरीर कैसे बना है ना? तो कितना, ये हमिंग बर्ड है, ये बहुत छोटी चिड़िया है और 1 सेकंड में 75 बार पंख फड़फड़ाती है और वजन कितना है? केवल 6 ग्राम, अरे 3 ग्राम है। तो 3 ग्राम की ये जो छोटी सी चिड़िया है भगवान ने बनाई है। तो इन सब, और ऊंट के बारे में देखो बता रहे हैं यहाँ पे, बिना बिना पानी के 8 दिन तक रह सकता है और इसकी जो पलकें हैं इसमें बालू ना घुस जाए इसके लिए इसकी पलकें पारदर्शी होती हैं। 130 लीटर पानी एक बार में पी लेता है और पैर ऐसे लंबे होते हैं कि बालू में कहीं फंस ना जाए। तो बालू के अनुसार इसके शरीर को बनाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है जो इस तरह के डिजाइन को बना रहा है। क्रिएशन इंप्लाइज ए क्रिएटर, है ना? अलग अलग क्रिएशन इस दुनिया में जो भी हैं वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। उसी तरह से जिस तरह से इन सब चीजों को हम पूछते हैं, एक बार ऐसे हुआ कि न्यूटन जो थे उन्होंने अपने घर पे एक मॉडल बनाया हुआ था, सोलार सिस्टम का मॉडल। तो उनका एक नास्तिक दोस्त आया और उसने कहा कि ये किसने बनाया ये मॉडल? तो न्यूटन ने कहा कि ऐसे ही बस मैं एक दिन सोया हुआ था और उठा और मुझे लगा कि ये कहाँ से आ गया, ये बन गया बस। तो दोस्त ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, जरूर किसी ने इसको बनाया होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, किसी ने बनाया नहीं, इट जस्ट केम बाय चांस। तो वो दोस्त को ये विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर एक छोटे से मॉडल को हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि इसको किसी ने बनाया होगा, जरूर बनाया होगा, तो फिर इतने बड़ी दुनिया को किसी ने नहीं बनाया होगा जिसमें इतने सारे सिस्टम्स चल रहे हैं। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि किसी ने बनाया है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो हो सकता है वो निराकार ज्योति हो जिसने वो बनाया होगा, वो भगवान हो सकता है, एक निराकार ज्योति होगा। लेकिन अगर वो निराकार ज्योति होगा या ऊर्जा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि वो बस प्रेम है ना, या पैसा है, तो वो क्या है? वो उसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में उसके एक राष्ट्रपति है, मान लो, ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है। तो राष्ट्रपति जो हैं वो सारे देश में विद्यमान है, पूरे अमेरिका में विद्यमान है। ऑल्दो राष्ट्रपति है नहीं सब जगह पर उनकी ही शक्ति सब जगह पर कार्य करती है। तो कभी भी हम ये नहीं देखते हैं कि कोई सिस्टम है जिसके पीछे बस एक लाइट है, वो बस एक लाइट है, नहीं, कोई व्यक्ति होता है। तो उसी तरह से इस सारे सिस्टम के पीछे एक व्यक्ति होगा। तो अब कोई ये पूछ सकता है कि क्या हम ही हैं? क्या हम ही भगवान हैं? तो भगवान होने का क्या लॉजिक है? क्या वो स्वतंत्र हैं? क्या सबको नियंत्रण करते हैं?
तो भगवान भगवत गीता में ये कह रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास तमसास चये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। कहते हैं कि सब कुछ मेरी शक्ति से प्रकट होता है, ऐसा भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था और उससे सारी दुनिया प्रकट हो गई थी, बिग बैंग। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर बिग बैंग हुआ था इसका मतलब एक विस्फोट हुआ था, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे एक विस्फोट हुआ था और ये पूरी दुनिया बन गई थी। लेकिन अगर विस्फोट होकर के कोई चीज बन सकती तो फिर आज भी बन सकती। मान लो मैंने बोला, अनंत को बोला मैंने कि देखो अभी एक बिल्डिंग बनानी है, तो इसलिए आप ऐसा करो कि ले आओ एक बम और हम एक विस्फोट करेंगे और एक नई बिल्डिंग बना देंगे। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो एक विस्फोट करके कभी कुछ बना है? नहीं, हमेशा तोड़फोड़ ही हुई है। तो बिग बैंग कोई ये लॉजिक नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बस बाई चांस ऐसे आ गया। तो अगर बाई चांस आ गया तो ये साइंस नहीं हुआ। अगर बाई चांस आ गया देन इट इज नॉट ए साइंस। सो बिग बैंग, और उसके बाद फिर एक और लॉजिक देते हैं। एक लॉजिक ये देते हैं कि दिस इज बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है, एक ये नेचुरल सिलेक्शन ये लॉजिक देते हैं। एक ये लॉजिक देते हैं और ये लॉजिक देते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन और एल्स पैटर्न। कुछ लोगों का ये कहना है कि जस्ट दुनिया जो है एक पैटर्न था, उससे लाइफ ओरिजिनेट हो गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि बस ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में आए और साथ में इकट्ठा होकर के एकाएक से बस डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। और इसकी लेकिन प्रोबेबिलिटी 1/10⁻²98, इतनी ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि ऐसा कभी हुआ होगा कि कुछ ऐसे बस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में आए और आपस में मिलकर के डीएनए मॉलिक्यूल बना दिए। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आप ये सोचिए, ये तो प्रोबेबिलिटी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड द फर्स्ट टू मॉलिक्यूल्स? So this is Britannica Encyclopedia, which says it should be emphasized that no theory of origin of solar system has yet won general acceptance. All involve highly improbable assumptions. तो सभी लोग, और ऐसी एक थ्योरी इन्होंने, ऐसी थ्योरीज को नोबेल प्राइज भी मिल जाता है ना, ऐसी थ्योरीज को नोबेल प्राइज भी मिल जाता है। सो इवन आइजैक न्यूटन जो है, न्यूटन ये कहते हैं कि the way the system is going on, we are forced to believe that God exists. फिर कुछ लोग ये सिद्धांत देते हैं इवोल्यूशन का सिद्धांत। इवोल्यूशन मीन्स man came from monkeys. Now the problem with इस तरह के इवोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम है? इवोल्यूशन से ये प्रॉब्लम है कि अगर पहले बंदर से इंसान बन रहे थे तो आज क्यों नहीं बनते? अगर कोई भालू धीरे धीरे व्हेल बन जाता है, ये लॉजिक देते हैं कि एक बार ऐसे हुआ। इवोल्यूशन के सिद्धांत में ये लॉजिक देते हैं। द पीपल गिव लॉजिक दैट देयर वाज अ बियर एंड दिस बियर वाज just searching for food.
bear was searching for food and somewhere it saw a water body and it could not get the food in the land, so it jumped in the water and became whale. Yes, this is the logic which evolution theory of Darwin gives. तो क्या आज भी कोई भालू बनता है? यही लॉजिक वो जिराफ बनने के ऊपर भी देते हैं कि एक घोड़ा था, वो बार बार कोशिश कर रहा था, उसको नीचे के पत्ते नहीं मिल रहे थे, तो वो धीरे 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 करते करते वो जिराफ बन गया. तो दिस लॉजिक इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि आज ये समय पे हो नहीं रहा है ये चीज. सो इवोल्यूशन थ्योरी हैज मेनी फ्लॉज इन दिस. इवोल्यूशन थ्योरी इज हैविंग सो मेनी फ्लॉज. इनफैक्ट इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने क्या किया, एक बंदर की ही एक हड्डी को रेत रेत करके उसको पहले छोटा कर दिया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, और इस तरह से उन्होंने दिखा दिया कि मैन केम फ्रॉम मंकीज. और इसको फॉर्जरी और ऑफ एविडेंस करके एक वीडियो है जिसमें इन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह से गलत एविडेंस बना करके ये प्रूफ किया गया. अब कुछ लोग ये कहते हैं कि केमिकल से बस हम उत्पन्न हो गए, लेकिन क्या केमिकल से मच्छर बना सकते हो? एक मच्छर भी नहीं बना सकते. एक अंडा भी बना सकते हैं, केमिकल से नहीं बना सकते. कुछ लोग ये कहते हैं कि आगे चल के बना देंगे, अभी तो बहुत साल हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं बना पाए. कुछ लोग ये कहते हैं कि रिलीजन में फेथ की जरूरत होती है और साइंस में लॉजिक की. आप में से कोई ये बता सकता है कि कोई ऐसी चीज है साइंस में जिसमें कि फेथ ही करना पड़ेगा? ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? दिस इज अ साइंटिफिक थिंग, बट साइंस सेज दैट यू हैव टू पुट फेथ इन दिस. केमिस्ट्री के एक्सेप्शनल केस. केमिस्ट्री में? हाँ वासु बोलो. सर इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन केसेस आते होते थे, तो उसमें ऐसे बोलते थे कि हाँ बस ये याद रखना है, ऐसा होता है. कैसे होता है हमें नहीं, जैसे बनाना बॉन्ड वगैरह से ये हो. और कोई भी? और कोई? वासव, विजय, रोहित, मंगल. सर एक थ्योरी आइंस्टाइन की वो भी थी कि हम टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें. वो तो पॉसिबल है ही नहीं ना. वी आर जस्ट फेथिंग ऑन दैट कि हाँ ऐसा होगा तो होगा. ओके. और कोई? अनंत, अंकुश, कृतिन, मंगल, रोहित. आपने वो सुना आई? साइंस में एक है ना आई की वैल्यू है आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, है ना? नहीं है ना, रूट ऑफ -1 इज आई. तो दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, है ना? नहीं, ये बोल दिया गया कि ये है भाई, रूट ऑफ -1 इज आई, है ना? नहीं, ऐसे ही आप देखोगे कि हबल्स कांस्टेंट है. अब इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, हबल्स कांस्टेंट, जो कि स्पेस में दूरियों को मेजर करने के लिए ये किया जाता है. तो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर जस्ट अज्यूम्ड इन साइंस आल्सो. सो ऐसा नहीं है कि रिलीजन ही केवल विश्वास पर है और तर्क पर है. विज्ञान जो है तर्क पर है. विज्ञान में भी बहुत सारी चीजें एजम्पशन करनी पड़ती है. तो फिर भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैसे इनको हम देखें भगवान को. तो ये कह रहे हैं सबसे पहला जो लॉजिक है वो ये है कार्य और कारण. मतलब द एक्शन रिक्वायर्स सम रीजन बिहाइंड इट. जैसे कि ये पंखा है, अगर हवा चल रही है तो इसका मतलब
पंखे में बिजली जा रही है, बिजली तो दिख नहीं रही है, पंखा चल रहा है, बिजली तो दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि बिजली है। इसी तरह से कोई, if there is a bow and arrow, the arrow, if it is moving and it is going on an object, that means there must be somebody who has actually pulled it and who has actually operated the bow. So somebody may see the arrow and say, oh, somebody has thrown this arrow. तो उसी तरह से इस दुनिया में जब कोई चीज हमें खोते हुए दिखती है तो उससे हमें पता चलता है कि भगवान है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूर्य हर दिन उग रहा है, एवरी डे सन इज राइजिंग, एवरी डे द ट्रीज आर ग्रोइंग। कहीं पहाड़ों पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर इतने सारे पौधे लगा दिए गए। किसने लगाए इतने सारे पौधे? किसी हम लोगों ने तो नहीं लगाए, पर इतने सारे पौधे आ गए। तो इससे ये पता चलता है कि कोई तो होगा जो इसको आरोपण कर रहा होगा। सो द एक्शन इज अ प्रूफ ऑफ द कॉज। ठीक है, अब नाउ एक देयर आर 3 ways ऑफ गेटिंग नॉलेज। द फर्स्ट वे इज प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब सीइंग। प्रत्यक्ष मतलब अपनी इंद्रियों से देखना, है ना। अनुमान का मतलब बस एज्यूम करना, और शब्द का मतलब टू गेट इट फ्रॉम सम अथॉरिटी। अब जो भी आपकी इंद्रियों से जनित ज्ञान है उसमें 4 दोष बताए जाते हैं। हमारे जो, देखो आप, हमारी जो इंद्रिय आंखें हैं वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को ही देख पाती है। कान जो हमारे हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही फ्रीक्वेंसी सुन सकती हैं, इसके बाहर और इसके अंदर नहीं सुन सकती। और हमारी जो जीभ है वो मीठा खाने के बाद अगर शक्कर खाने के बाद ऑरेंज खट्टा लगता है और नींबू खाने के बाद ऑरेंज मीठा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये हमें गलत इंफॉर्मेशन भी देती हैं। कोई जब ये कहता है कि हमें दिखाइए या हमें भगवान को साक्षात अनुभव कराइए, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारी इंद्रियां तो ऐसे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन भी गलत देती हैं। आर दीज सेंसेस रियली क्वालिफाइड टू सी हिम? अब आप ये देखो, ये मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, ये आंख हमें धोखा देती है। तो ये जो इंद्रियों का ज्ञान है ये अपूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नहीं है। तो इसमें हमारी सेंसेस की जो नॉलेज है इसमें 4 प्रकार के दोष बताए जाते हैं। वो क्या है वो दोष? मैं आपको इसको इंग्लिश में बताता हूं। ये दोष हैं आई सी सी। आई का मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस, मतलब हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसके वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूजन्ड हो जाते हैं। और इसके बाद हम क्या होता है, हम कमिटिंग मिस्टेक्स, फिर हम गलतियां करते हैं, और उसके बाद चीटिंग प्रोपेंसिटी, और फिर हम इसको छिपाते हैं। तो ये 4 दोष हमारे अंदर हैं। हम सभी इंसानों के अंदर ये 4 दोष जरूर होते हैं। हम, पहली बात, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, जिनके वजह से, अब जैसे इस दीवार के बाहर क्या हो रहा है हमको नहीं दिख रहा है। इसी तरह से अगर आंखें देखने के लिए बनी हुई हैं तो सब कुछ दिखना चाहिए ना। तो इंद्रियां सब कुछ देख नहीं पाती, इसीलिए अगर भगवान को नहीं देख पा रही हैं तो इतनी कोई बड़ी तो बात है नहीं। और जब हम इस तरह से कुछ इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से भ्रमित होते हैं तो हम कुछ गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद हमारे अंदर उसको छिपाने की प्रवृत्ति होती है, तो हम चीटिंग करते हैं।
तो ये 4 डिफेक्ट्स हैं. इम्परफेक्ट सेंसेस, टू बी इल्यूजन्ड, then committing mistakes, and then cheating propensity. Okay. ठीक है. तो ये भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाठव, इसको बता रहे हैं. ठीक है. तो यहां तक हमारा जो आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है. एक दो लॉजिक्स और हैं जो कि हम थोड़ा चलो देख लेते हैं इसको. एक अनुमान प्रमाण है. ये भी एक प्रमाण माना जाता है जिससे कि हम अंदाजा लगाते हैं कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है. तो ये अलग अलग लोग अगर अनुमान लगा करके कि भगवान ऐसा होगा, हम तो ऐसे मानते हैं, भगवान ऐसा होगा, अगर इस तरह से हम अगर ज्ञान लेना चाहेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिसर्च कर रहे हैं. देखो आप, ये हाथी है, ये बचपन से अंधे लोग हैं, इनसे पूछा गया है कि हाथी कैसा लगता है, तो ये छू करके इसको देख रहे हैं और कह रहे, एक व्यक्ति कह रहा है कि हाथी तो रस्सी जैसा होता है, एक कह रहा है कि हाथी तो पेड़ जैसा है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि हाथी तो दीवार जैसा होता है, और एक व्यक्ति कह रहा है सांप के जैसा होता है, एक व्यक्ति ये कह रहा है कि तीर के जैसा होता है, एक व्यक्ति कह रहा है कि फरसे के जैसा होता है. अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लेते हैं ज्ञान. अगर इन लोगों को सही ज्ञान लेना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ आप. इन लोगों को अगर सही इंफॉर्मेशन पता चले उसके लिए क्या करना पड़ेगा. हाथी के बारे में जो ये बचपन से अंधे हैं, इनको सही इंफॉर्मेशन अगर पता चले तो इनको क्या करना पड़ेगा. कोई भी अनम्यूट करके बताएंगे. पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी हाथी की. हाँ, पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी, या फिर कोई देखा हुआ हो उससे पूछना पड़ेगा. बहुत अच्छा बताया आप. तो उसी तरह से हमारी जो ये अनुमान है ये भी ठीक नहीं है. इसीलिए अब इस तरह से अगर, चलो हम एक दूसरा एग्जांपल दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इसको बता देगा तो मैं समझूंगा उनको सब समझ में आ गया. जस्ट अगर मान लो कि कोई लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में वासव को भेज दिया जाए और बोला जाए कि वासव, आप इस लेबोरेटरी में आ गए हैं, अब आप रिसर्च करके नई नई चीजें बनाइए. तो वासव को सबसे पहले क्या चाहिए है? वासव, आपको क्या चाहिए सबसे पहले? कोई भी लेबोरेटरी में, मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लैब है, उस लैब में आप जाते हैं तो आपको रिसर्च करने के लिए आपको क्या है उसका तरीका रिसर्च करने का, कौन बताएंगे? कंडीशन. कंडीशन. अच्छा. या उस लैब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको इकट्ठी करनी है तो आप कैसे कैसे करेंगे? या तो किसी लिक्विड्स को निकालेंगे, आपस में मिलाने लगेंगे और चेक करेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे ये पीला वाला लिक्विड ऐसे है, नीला वाला लिक्विड ऐसे है, ऐसे करेंगे? क्या करेंगे? तो अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। सॉरी, एक मेरी कॉल आ गई थी। हम यहाँ पर बात कर रहे थे एक लेबोरेटरी की। तो अगर उस लेबोरेटरी में हमको सही इंफॉर्मेशन अगर पता करनी है तो हमको किसी लैब मैनुअल के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर कोई व्यक्ति होगा जो हमें गाइड करेगा। अदरवाइज हम सही इंफॉर्मेशन नहीं पता कर पाएंगे। उसी तरह से ये जो दुनिया है या भगवान है, उनके बारे में ज्ञान हमें उन पुस्तकों से, उस मैनुअल से मिलेगा। जैसे भगवत गीता कहते हैं, वहां से हमें ये ज्ञान मिलेगा। नहीं तो बिना मैनुअल के जो हम ज्ञान लेंगे तो हम इसी तरह से फिर तोड़ फोड़ करेंगे उस लैब में, है ना। अगर कोई किसी को अपने पिता के बारे में जानना है कि मेरी मदर, मेरे पिताजी कौन है, तो अगर माता कह देगी, मदर कह देगी कि ये ओके, ये तुम्हारे पापा हैं, तो ठीक है। नहीं तो अगर इस जीन का परीक्षण करके अगर पता करना हो कि पिताजी कौन है, तो इस तरह का रिसर्च करके अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तो लगभग 800 साल लगेंगे केवल कुछ लोगों को। इतने सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही ये पता करने में कि ये मेरे पापा हैं कि नहीं। इस तरह का रिसर्च, इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमें ये जो ज्ञान है ये कहाँ से मिलना चाहिए। शास्त्रों से हमको ये भगवान के बारे में ज्ञान मिल जाता है, और ये जो ज्ञान है ये कभी बदलता नहीं है। अब शास्त्रों में ज्ञान दिया हुआ है, जैसे गोबर के बारे में बताया है, तो ये एकदम सत्य है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में, और पृथ्वी गोल है इसके बारे में। हमारे जो बच्चा जो जन्म लेता है तो क्या सीरीज में वो उसका बढ़ता है, ये भी हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन्ड है। पौधों में जान होती है, ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और फ्यूचर के बारे में बहुत सारे प्रेडिक्शंस जो हैं हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध आएंगे, कल की अवतार होगा, चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो अगर कोई इन शास्त्रों को अगर कोई लेता है, शास्त्रों से जो ज्ञान लेता है, तो वो ज्ञान जो है वो पक्का ज्ञान होता है। जैसे कि कोई लैब के मैनुअल से अगर ज्ञान लेता है तो वो पक्का तो ज्ञान होता है। तो ये हमारे पूरा वैदिक नॉलेज है। आप देखोगे हमारे वैदिक नॉलेज में श्रुति स्मृति दो भाग हैं। श्रुति में आते हैं वेद, उपवेद, वेदांग, उसके बाद फिर शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, और ब्रह्म, अरण्यक, उपनिषद, ये सब वेदों के पार्ट हैं। फिर उसके बाद सूत्र, तंत्र, पंचरात्र, पुराण, इतिहास, षट दर्शन, 18 मुख्य पुराण, 18 गौण पुराण, उसके बाद गुह्य सूत्र, धर्म सूत्र, और इन सब तरह से वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, इस तरह से हमारा जो वैदिक वांग्मय है उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए। अब देखो, शास्त्रों को जो लिखने वाले जो आचार्य लोग हैं, या फिर हो सकता है कोई कहे कि ये तो व्यक्ति हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो आचार्य लोग हैं ये बड़े निस्वार्थ लोग हैं। ये लोग ऐसा नहीं कि जैसे हमारे ये चेतन भगत के जैसे लोग हैं जो बाद में रॉयल्टी लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो आचार्य लोग हैं ये कभी पैसे ऐसा नहीं लेते, और ये लोग हमें निस्वार्थ भाव से हमें जो ज्ञान हमें देते हैं। लेकिन ये जो दुनिया के लोग हैं वो उनका कुछ अपना स्वार्थ होता है ना? तो हम किसका अनुसरण करना चाहते हैं? ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो सेशन है ये कंप्लीट होता है। मैं एक छोटा सा वीडियो आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, तो जिसको आप देखिएगा। एक बार आप अपना वीडियो एक बार फिर से ऑन कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट टेक द स्नैपशॉट और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। बाकी लोग
भी चाहे तो वीडियो ऑन कर सकते। अनंत, अंकुश, वासु, मंगल, रोहित, वासव, ठीक है, यहाँ आ गए सभी लोग, है ना। बाकी हाँ, वासव, आप लोग एक मिनट, मैं गैलरी शुरू करता हूँ। बाकी जो भी हैं उनको भी वीडियो ऑन। रोहित, अच्छा हाँ हो गया वीडियो ऑन। और अंकुश, ठीक है। वासु, आपका आपका वीडियो ऑन। मंगल और मंगल, आप तो मंगल और वासु बस दो ही लोग हैं, ठीक है। एनीहाउ, तो आई विल जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट फॉर द सर्टिफिकेट और इसके लिए थोड़ा मुस्कुराते हुए फोटो रहे तो अच्छा है। विजयदीप, आपका हाथ आ रहा है अभी, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। आई विल जस्ट टेक दिस स्नैपशॉट, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस आपके हो, कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो आपको तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हम ग्रुप में कुछ वीडियोस डाल देंगे जिससे कि आपको, वी विल put some videos and you can just watch them, so you will have some more information about the concepts which we are discussing. So thank you. Shivansh, you are there? Yes, sir. Yes. Okay, so ठीक है, फिर मैं लीव करता हूँ, आप इसको फिर क्लोज कर लीजिए, ठीक है। आई एम मेकिंग यू होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग।